इसलिए कि जुनूनियत के बगैर जिंदगी नहीं है, और ये कास्ट इसलिए क्योंकि इस कास्ट के बगैर ये फिल्म जुनूनियत नहीं है. See, right in the opening shot, I'm all in the lake. It was a dirty Virat lake, but बचाने के लिए पुलकित आए वहाँ पे. no, but I think jokes apart. Thank you, Vivek, sir, I think for this opportunity. I think every actor wants to do a love story, and I think with Courtesy T series, I've got to do 2 back to back. And thank you, Pulkit, for being able to bear me, if you did. So, and this is of course, and I think I'm sure आप सबके ज़हन में ये होगा, and I've been, that's the first thing. अच्छा, Sanam Re now just suddenly Junooniyat, and is it Sanam Re 2? Not at all. It is not Sanam Re 2 at all. And आप देख सकते हैं that it's entirely different. It's a different story altogether. We have a different director altogether. It's a different character. सिर्फ जो lead cast same है, but it's entirely different. And we hope that we get to entertain you, and not claiming anything. Oh, it's some, as Sir said, some experimental drama or anything. It's a love story. It has romance. It has drama, intensities, tears, but all happy, and some amazing music for every occasion, every genre, which I'm sure actually that you all will love. We already got a lot of love for our trailer, and today 2 songs got launched, and getting good feedback. So thank you so much. The entire, I think, all the people responsible, I think, for this song, Nachange, Meet Brothers, Tulsi Kumar, Neeraj Sridhar, I think they're all here. So thank you so much for making it really special. Over to you now. So, मीट ब्रदर्स, ये आप लोगों के लिए और पूरे क्रू के लिए है. मतलब ये गाना एक और धमाका आपने कर दिया पाजी. मतलब अमेजिंग. कौन किसको डायरेक्ट कर रहा था? मतलब इन्होंने कहा भाई मेरा एक्सपीरियंस है मीट ब्रदर्स. ये हमारे पाजी है ना. जब ये होते हैं तो सारी चीजें धमाके होते हैं. Because it's an old song and it's such a big hit song. तो जब भी आप नए गाने को टच करते हो तो बहुत खतरा होता है. अभी हमने हाई हील्स बनाया था. Thankfully now people tell us that they remember the new one. So we hope कि ये नचांगे सारी रात को एक नई तरीके से लेके आए हैं. And if you realize that एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हॉट न्यू आवाज इसमें हमने लॉन्च करी है तुलसी कुमार की. हाँ, बहुत अलग तरीके से, क्योंकि ऐसे तुलसी को आपने नहीं सुना है. So we would like to say कि we have launched her again in a different avatar. Yes, I totally agree with that, because this is actually my first dance peppy number. Of course, इससे पहले मेरा सया सुपरस्टार आया था, but this was recorded much before that. और ये गाना सुन के मुझे वो गाना मिला. So this is a different avatar of me that everyone will get to hear. Or everybody is surprised how can Tulsi sound like that, but पंगड़े दी क्वीन मैं तो कुड़ी सो हसीन मैं तो मेरी है गजब गलबा फिगर है गा कैंट तेरा ठुमका एक्सलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ नचांगे सारी रात सोने वे नचांगे सारी रात सोने वे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो वे कर लो थोड़ा सा प्यार. फोन आया हमें कि उन्होंने बोला कि यार आपने नाम तुलसी का दिया और गवाया किसी और से. तो हाँ, तो हमने कहा नहीं भाई, जाके हमारा के सेशन चेक कर लो, उसमें तुलसी की ही आवाज़ है. एंड इस गाने का क्रेडिट एक भूषण जी को भी जाएगा, बिकॉज उनका फ़ोन आया था सबसे पहले. उन्होंने कहा कि कुमार पाजी को लेके आओ और एक गाना रिक्रिएट करना है विच इज़ हिज फेवरेट सॉन्ग. तो डेफिनेटली थैंक्स टू भूषण जी ऑल्सो. I don't know why you keep talking about our chemistry. You just saw it. 1.5-2 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा हेट स्टोरी बनाने के बाद, और हमें पता नहीं था कि हेट स्टोरी भी चल सकती है, और जब चल गई तो सबने कहा हेट स्टोरी 2 बनाओ 3 बनाओ. तो मैंने कहा नहीं, अब डिटॉक्स करने का वक्त है. और मैं डिटॉक्स करने के लिए गोवा गया हुआ था. तभी मुझे आई मेट अ वंडरफुल लेडी. शी गॉट मी अ
a thesis on love, you know, a big thesis on love. And I then started, I always thought never in my life I will make a love story. मैं आप देखें मैं different genres में काम करता हूँ, I don't repeat my genre. I thought I'll never make a film on love story, but this is important to tell you since you are here. And when I started researching, आपको पता है लोगों को ऐसा लगता है कि the maximum research on Google is on sex. It's not true. The maximum number of searches are on love. सर मुझे तो पता था, आपको पता था? मुझे तो पता था, मैंने तो कभी सेक्स सर्च भी नहीं किया सर। तो आप भाई कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती बिना सर्च के मिल जाता, हमें करना पड़ता है, हमें बहुत सर्च करना पड़ता है। But anyway, and then second thing I read by a great management guru. This guy has been researching for last 40 years, and whenever somebody dies, he goes there and he works in MIT. He goes there and he sits and spends a lot of time with those people. If somebody informs him, or जो चीज, this is very strange, and he found that nobody in this world on his deathbed ever said कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने और काम कर लिया होता, काश मैंने और फैक्ट्रीज खोल ली होती, काश मैंने और फिल्म्स कर ली होती, या काश मेरी और हिट हो गई होती। यू नो व्हाट एवरीबडी सेज, काश मैंने लोगों से और प्यार किया होता। अगर यही जीवन का सत्य देना, ही सेड ओके प्रीति मेरी बहुत झगड़ा, प्रिया ने मैं अपनी बीवी से इतना नहीं झगड़ा जितना मैं प्रीति से लड़ाई की। मैंने कहा व्हाट शिट यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू मेक दिस। बट देन व्हेन आई टुक दिस ऑन, आई सेड लव स्टोरीज देखिए चेंज नहीं होती हैं, सबकी इंसान की जिंदगी की लव स्टोरी वही रहती है। और दुनिया का सबसे क्लीशे अगर कोई सेंटेंस है तो वह है आई लव यू। और पहले दिन से यानी जब इंसान बना होगा शायद तब से लेकर अभी तक, दैट्स द ओनली वे वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई लव यू। तो मेरे ख्याल से लव जो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है जो आदमी को इतना ड्राइव करती है। एंड देन वी डिड, मैं फिर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक अ यंग, मैं चूँकि छोटे शहर का एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैंने उस माइंड सेट से देखने की कोशिश की। हाँ, पर अब आप बहुत बड़ी वो हैं पर मैंने उस नज़र से देखा। तो दिस फिल्म बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय एंड गर्ल who either have just fallen in love or who are about to fall in love or who have just broken up in love. तो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है, उसी हिसाब से डायलॉग्स एंड म्यूजिक हैं। एंड आई थिंक फॉर द वी वांटेड, भूषण एंड आई डिसाइडेड दैट वन थिंग वी विल डू, लव स्टोरी की जो रूह होती है उसके डायलॉग्स और म्यूजिक में होती है। और मैंने इमेजिन किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिंसियरली मैंने कहा अगर यश जी दाग के वक्त में कैसा सोचते होंगे उस तरह से अगर मैं सोच के देखूं तो क्या होगा। सो वी अटेम्प्टेड दैट। ये बड़ी समाज से, जीवन से, परिवारों से जुड़ी हुई कहानी है, इसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनरियल, पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिल को छूती है। सेकंड थिंग इज, किसी भी फिल्म की जो है कास्टिंग 50% बैटल होती है। और मैंने एक फिल्म देखी थी फुकरे, एंड आई सॉ, जब भूषण हमारी बात हुई, आई सेड कि दिस इज द बॉय, दिस फिल्म हैज़ टू बी डन। क्योंकि आर्मी सोल्जर्स बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पर, नॉर्मली सोल्जर्स ऐसे बनते हैं एक सीन में एक शर्ट पहन ली और उसके बाद काम खत्म, फिर कुछ और हो गए। पर हियर ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर थ्रू आउट द फिल्म। एंड मेरे दिमाग में वो राजेश खन्ना की आराधना की इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी व्हेन ही कम्स बैक अगेन फरीदा जलाल वाले ट्रैक में। सो आई सेड हु कैन बी दैट बॉय, एंड देन दैट्स हाउ आई फाउंड पुलकित। फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी क्लिक, इट स्टार्टेड। अब सवाल था कि एक ऐसी भंगड़े दी क्वीन जैसी लड़की कहाँ से लाएं, खालसा कॉलेज अमृतसर वाली, जो कि सिर्फ वही नहीं हो, संस्कारी भी हो, मॉडर्न सिनेमा में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी अर्बन भी हो, थोड़ी रूरल भी हो। तो मैं अपने ऑल्टर ईगो को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यामी गौतम मिल गई। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गॉर्जियस गर्ल, ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। एंड ये भी टाइम को लेके काफ़ी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप इनको एक एब्सोल्युटली न्यू केमिस्ट्री, न्यू कपल, वेरी ब्यूटीफुली जॉब डन, ग्रेट म्यूजिक बाय एवरीबडी। एंड आई थिंक लव स्टोरी में इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। लव स्टोरी की रूह मैंने बताया, डायलॉग्स। अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको फिर से वही पुराने बहुत खूबसूरत डायलॉग आएंगे। इसमें बड़ी शेरो शायरी भी है, और सिर्फ कुमारी शायर नहीं है, मैं भी थोड़ी शायरी कर लेता हूँ। Right now she's working with Hrithik, so I think दोनों Hrithik- बहुत काबिल हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दोनों ही अपनी जगह बहुत काबिल। ऐसे कर, See, that was very different. Of course, Hrithik is one of, I think, the most, it's undoubtedly, without any debate, I'm sure we'll all agree, he's one of the best actors we have. He's a really perfectionist to work with. But वो बिल्कुल एक अलग कहानी थी. And this is primarily, it's a love story, I think, and I think on core, and ये बिल्कुल, I think no one could have, I think, justified playing Jahan better than उनका Kulkit. देश का प्यार था, मेरा भेष का प्यार है। मुझ
मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना, मुझको अल्फाज बना लो, गहरा सा राज बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। आई थिंक जुनूनियत, आई थिंक एज सर सेड, प्यार के लिए, पर वो प्यार जरूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांस के पर्सपेक्टिव से, दैट इज फॉर फैमिली, फॉर मी दैट इज फॉर माय वर्क, और मेरे लिए ये ही दोनों आई थिंक चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट, तो हाँ जुनून है अपने प्यार के लिए, अपने जिनको मैं प्यार करती हूँ, व्हिच इज़ माय फैमिली एंड माय वर्क व्हिच आई वर्शिप। तो यार फिल्म बनाते हैं तो एक समझ में नहीं आता है, आज समझ में आ रहा है कि आई वॉज वर्किंग विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, यू नो। तब तो हम लोग फिल्म बनाते रहते हैं, सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम आर सिटिंग हियर। आई एम वेरी लकी टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड सुपर टैलेंटेड पुलकित ऑफ। नहीं, उस वक्त हम जब कर रहे थे बड़ी बाढ़ आई थी कश्मीर में, आप जानते हैं, और कश्मीर में शूट करना आसान बात भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली एक रात का आपको किस्सा बताता हूँ, हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे, पुलकित तब नहीं आए थे, यामी का कोई सीन था और बहुत दूर सोनमर्ग वोनमर्ग था, 2-3 घंटे का ड्राइव था। जब मैं लौट के हम आ रहे थे, उसमें काफ़ी सारी कश्मीरी लड़कियां काम कर रही थी, 25-30। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो सडनली रात को हमारी सारी गाड़ियां रोक दी एक गांव में, एंड वो टॉर्च लेके सब डंडे डंडे लेके खड़े हुए थे। बाद में पता चला कि कश्मीरी जो लोग हैं उन लोगों को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं है, तो अगर वो लड़की मिल जाती तो हम सबको पकड़ के बहुत मारा पीटी हुई होती। तब बॉम्ब भी, मिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग कश्मीर, तो काफ़ी बॉम्ब फट रहे थे, और ये भी एक सवाल उठा था 2-3 बार कि हम आगे जाएं कि नहीं जाएं। प्रोडक्शन वाले एज़ यूजुअल कहते हैं कि सर रिस्क मत लो, लेकिन मैं थोड़ा जांबाज टाइप का डायरेक्टर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, तो हमने वो रिस्क ली। एंड थैंक्स यामी फॉर, इतनी ठंड में हिंदुस्तानी हीरोइनों को तो उनके लिए खास तौर पे तालियां बजानी चाहिए। ईश्वर जाने कैसे इतनी बर्फ़ में कम कपड़े पहन के शूटिंग कर लेती हैं, इतनी ठंड थी, मतलब यानी आंखों से खून बहता था, बट शी डिड इट। आई डोंट नो, जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। Really, big thanks to you. I think always a director, because I'm not saying because Vivek sir said it and standing here, but for any actor, I think एक comfort level जो एक होता है डायरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and we can overcome anything, any bad, any hurricane, any tornado, if your director is understanding and gives you that comfort and warmth. I'm sure you agree with me. कश्मीर So, इज वन ऑफ द मोस्ट thank- डिफिकल्ट प्लेसेस टू शूट। जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली। हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ, जब हम आधी फिल्म शूट कर चुके थे, तब फितूर की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई हमारे सामने ही। हम जब शूट कर रहे थे पहलगांव में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। मैं उनके सेट पे गया, 2-3 घंटे में बैठा, कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फिल्म के साथ, तब मैंने कहा अब आपकी फिल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप जाएँ कहीं भी, हम तो जाके हिट बनेंगे। तो इस तरह की ये कहानी है। Rumors that we look great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, Yeah, इनको right? देखने दो यार, एक Fact scene यार, इधर- अब बहुत हो गया, थक गए, ऑडियंस भी थक गए, बोर हो गए, हम लोग भी हो गए। We want to know the real thing. Like, what is it? अभी तो हाँ हम भी बोर हो गए हैं। सच में, there is, I don't know, it's very simple. I think we're here for work. I think I take it as a compliment. He's always said तो it. यामी से ही पक गया हूँ। इतने सवाल हो चुके हैं, तुम प्लीज दूर खड़ी हो मुझसे। Done, yeah. I think we just Please. want to, I think, be known for our work. For, I think, ऐसे सर ने कहा, बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है। But I और, fell in love with you. She became my muse for the film. So, और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए? तो मेरे ख्याल से वो बहुत Another अच्छी बात है, advertisement. क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद रिलीज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी वजह नहीं। They just tossed, it was in-house, TC. They just tossed a coin. Sanam Ray won. Toss that. नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा था, हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में ही शूट करना था, और फिल्म शूट करते करते हमने खत्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था, और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी, और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे, बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम। और हमारी फिल्म में VFX काफ़ी, आपने देखा होगा, लेक और ये और दुनिया भर की चीज़ें, तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड दैट दे शुड रिलीज अ फिल्म व्हिच वाज आल्सो रेडी। तो एंड आल्सो आई गॉट वेरी बिजी विद माय अनदर फिल्म व्हिच रिलीज लास्ट वीक। जुनून कई तरह के होते हैं। असली जुनून जो जिसको मैं मानता हूँ जुनून, कि आपने जो, देखिए बाकी सब बातें, मैं ईमानदारी से बोलूँ आपको इसका जवाब दूँ ईमानदारी से कि ऐसे ही, बाकी सब बातें देखिए बेकार हैं। असली चीज़ जो मैटर करती है कि आपने जो सोचा था, विजुलाइज किया था जिस कैरेक्टर को,
वो कैसा पर्दे पे निकल के आया है। बाकी तो सब बातें ये था नहीं था, ऐसा थोड़ी है कि घर में दो भाई रहते हैं और उन दोनों में बहुत राम लक्ष्मण जैसा प्यार होगा तभी वो घर में खुशी होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। व्हेन यू विल सी दिस फिल्म यू विल रियलाइज इट। मैं इसलिए आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें और तब उनको समझ में आएगा कि हाउ सिंसियरली बोथ ऑफ देम, एंड नॉट बोथ ऑफ देम, दे आर अदर एक्टर्स, रिश्ता भट्ट, गुलशन देवैया, they are grandmothers, grandfather. There are lots of actors in this film. In fact, it's a big family, big fat Hindu Indian family. And when you'll see the film, you'll realize that everybody has given so much. And under let me tell you, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ logistics का problem रहता है हिंदुस्तान में. उसके बाद to shoot in places like Kashmir and Shimla and Jail, it's not easy. It's very extremely difficult. पानी नहीं होता है, गरम. Actually आपको बताऊं जब हम सोनमर्ग में shoot करने गए थे, this is really समथिंग। देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होता है ऐसा कि लोकेशन के लिए कोई इतना ज्यादा एडवेंचरस हो जाए। तब वो एरिया बंद हो चुका था। वी वर वॉर्न्ड, वी वर नॉट अलाउड टू गो इन। याद है आपको यामी? तो हम लोग कुछ नहीं था तब। मैंने जबरदस्ती, कहाँ है कोई प्रोडक्शन वालियां होंगे वो जानते होंगे, बहुत लड़ाई लड़के टू आई बिकेम अ बैड गाय, बट उसके बाद लड़ाई लड़के मैं आर्मी वालों को मैन्युपुलेट करके, आई एम सॉरी टू से दैट, सब कुछ करके मैं किसी तरह से वहां गया और वहां एक या दो ही होटल रुके थे जिनमें गर्म पानी भी नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कंबल नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ 4 दीवारें। पुलकित भी नहीं था। हाँ पुलकित भी नहीं था। It was just me. और उसमें जो कपड़े और जैकेट्स हम पहन के गए थे उसी में सोए और हम 2 दिन उस तरह से हमने शूट किया। इट वॉज आई डोंट नो, इसी को कहते हैं जुनूनियत शायद, जब आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा पहुंचे। मैं इस फिल्म के लिए सोच रहा था क्या है वो जुनूनियत, शायद यही है वो जुनूनियत। We got a lot of support from the army. We must not forget that. It was very difficult to shoot and get permissions to shoot at the places that we shot at. And these army guys, they helped us a lot. They provided us with a lot of stuff to keep us warm. And most of the locations that you see where the army base is set up in the movie, they are all real locations. They are all actually the bases that were let out to us कि आप इसमें shoot कर लीजिए, लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक. And they were great. They made it really easy for us. Localized, I think they were extremely sweet. Even the localized. तो ये लव स्टोरी जूनियत की हम बात करते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा, आप मत दीजिए। बिल्कुल अलग नहीं है विवेक जी, अलग ही नहीं है। विवेक जी लेट देम आंसर सर। मुझे मालूम, बता रहा हूँ बिल्कुल अलग नहीं मुझे है। मालूम है आप बहुत हाजिर देखिए, जवाब हैं। हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं। हर let लव me- स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं और पुलकित पे अरमान की आवाज़ नहीं होती है और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन इन लव? क्या आप कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों तो से? आप लव दोनों? में फॉल कर करके बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूँ। यामी आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताज़ा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? मैं रिलेट करती हूँ उसकी पंजाबियत से। सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ। शी इज़ अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल, खालसा कॉलेज अमृतसर। एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस बिकॉज एज सर सेड नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर। और मैं पूरा रिलेट कर पाई। हम अमृतसर में भी शूट किया है, वहाँ का खाना, वहाँ की लोकेल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन। आई एम वेरी देसी, सो आई टोटली लव्ड इट। और मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ। प्यार से रिलेट नहीं करती? क्यों नहीं करते? हाउ कैन वी एग्जिस्ट विद पूरा सर पूरी कॉन्फिडेंस निकल गई प्यार की बात करते हुए। Thank you. Yeah, one बना लो एक लंबी रात, बना लो अपने जज्बात, बना लो जाना।